السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. ایک ہی کمرے میں لال، پیلی، ہری جھنڈیاں بساط بھر خوشی کا اظہار کر رہی تھیں. کمرے میں لگا واحد پیلا بلب اپنی متکوک سی روشنی کے باعث ہر شے پر پلاہٹ بکھیرے ہوئے تھا. جوزی نے اندر آتے ہی دروازے کی کنڈی لگائی اور سیج نما بستر پہ بیٹھی انجلی کے گلے میں ہار ڈال کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا. آج جوزی اور انجلی کی شادی ہوئی تھی. انجلی اس کی پھوپھی کی بیٹی تھی. جوزی پیشے کے لحاظ سے خاکروب تھا. اسے اپنے علاقے کی گلیاں اور سڑکیں صاف کرنی ہوتی تھیں. اوور ٹائم الگ لگاتا. اسے صرف 2 دن کی چھٹی ملی تھی مگر وہ پورا 1 ہفتہ اپنی شادی منانا چاہتا تھا. 15 سیڑھیاں چڑھ کر یہ واحد کمرہ تھا. باہر ایک کونے میں بیت الخلاء اور دوسرے کونے پر چھپ ڈال کر کونے میں چولہا رکھا تھا. اس کا بھی 1000 کرایہ تھا جو اسے ہر حال میں ادا کرنا ہوتا. انجلی سانولی، دبلی پتلی، عام شکل و صورت کی لڑکی تھی مگر جوزی اسے دل و جان سے چاہتا تھا. محبت روپ کی محتاج نہ تھی. اس وقت وہ دلہن بنی سستا سا گلابی رنگ کا سوٹ پہنے، رنگ برنگی چوڑیاں اور تیز لال لپسٹک لگائے اسے ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت لگی. رات اپنے فضول خیز لمحات ان پہ نچھاور کر رہی تھی یہاں تک کہ اجالا نمودار ہو گیا. کہیں صبح کے 12 بجے وہ دونوں بیدار ہوئے. جوزی کو بھوک نے ستایا. نئی دلہن بھی بھوک سے بےتاب نظر آ رہی تھی. چل اب اٹھ جا. جوزی نے اس کا چہرہ تھام کر آنکھ ماری تو انجلی نے نگاہیں جھکا لی. جوزی اس ادا پہ مر مٹا. وہ اٹھا اور کمرے سے نکلتے ہوئے انجلی سے مخاطب ہوا. حلوہ پوری کھائے گی نا؟ انجلی نے اسبات میں سر ہلایا اور جھک کر چارپائی تلے سے جوتا نکال کر پہننے لگی. جوزی کی نگاہیں اس کی چپل پہ جم کے رہ گئیں. 150-200 روپے والی عام سی چپل. دلہن تھی وہ مگر حالات جانتا تھا. انجلی جلدی سے پاؤں چارپائی کے نیچے چھپانے لگی، شرمندہ شرمندہ سی. جوزی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پہ نرمی اور محبت سے ہاتھ رکھ کے بولا، اے کیا ہوا؟ میں دلاؤں گا نا تجھے خوبصورت جوتا. وہ اسے کیا کہتے ہیں، کوٹ شوز، کالے چمکدار ایڑی والے. تو فکر نہ کر. انجلی اس کی بات پر اٹھی اور اس سے لپٹ گئی. تب جوزی مسکراتا ہوا باہر چلا گیا. پھر شادی کو کئی دن گزر گئے مگر انجلی کی آنکھوں کے سامنے کالے سنہری پٹی والے کوٹ شوز لہراتے رہے. ایک دفعہ جوزی اسے بازار لے گیا. دکان کے شیشے کے پار اسے اپنی پسند کے جوتے دکھائی دیے. میں پیسے پتا کر کے آتا ہوں. جوزی جانے لگا تو انجلی نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا. بہت مہنگے ہوں گے، تو رہنے دینا. وہ منمنائی. او پاگل، پیسے پوچھنے کے پیسے تو نہیں لگتے نا. وہ بازو چھڑا کر دکان کے اندر چلا گیا. چند منٹوں بعد آیا تو اداس چہرہ اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے تھا. انجلی سمجھ گئی کہ بہت قیمتی ہوگا اور ان کی استطاعت سے باہر. چلیں گھر. وہ کوئی بات کیے بنا گھر آ گیا. جوزی نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ انجلی کو یہ جوتے کبھی نہ کبھی ضرور دلائے گا. شادی کے بعد اس روز جب وہ کام پہ جانے لگا تو انجلی اداس ہو گئی. آ جاؤں گا، جلدی آ جاؤں گا، تو آرام کر، روٹی میں لیتا آؤں گا. جوزی نے اسے ساتھ لگا کے محبت سے کہا تو انجلی اداس آنکھوں سے اسے دیکھتی چپ ہو گئی. جوزی بھی افسردہ دکھائی دے رہا تھا. اور پھر پورا دن کام دام سے فارغ جب ہوا تو حسب معمول ہاشمی صاحب کی بیگم نے اسے ایک شاپر تھمایا. یہ لے جوزی. رات ان کے بیٹے کی منگنی تھی. پلاؤ، زردہ اور سالن انہوں نے جوزی کو دیا. اکثر و بیشتر اسے کھانا کپڑے دیا کرتی تھی. بھلا ہو آپ کا جی، وہ ممنونیت سے بولا. جوزی اس علاقے میں 3 سال سے کام کر رہا تھا. اس کی دیانت اور شرافت کے سب گواہ تھے.
साल पहले कूड़े के ढेर में से उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी थी, सोने की अंगूठी। वो उठाकर देखने लगा। शुक्र था कि करीब कोई न था। लेकिन अगले ही दिन हाहाकार मची कि बेगम हाशमी की सोने की अंगूठी गुम गई। जोशी उनके दरवाजे पे आया और बेगम साहबा को एहतराम के साथ उनकी अमानत लौटा दी। तब से बेगम हाशमी उसकी शराफत की कायल हो गई और काम से वापसी पर उसे अक्सर ही अपने यहाँ आने का कहती थी। कभी कभार उसे रोटी सालन, कभी कोई फ्रूट, कोई पुराना जोड़ा दे देती। जोजी खुशी से कबूल कर लेता। आज भी वो उसे शॉपर देने लगी तो कतरे परेशानी से बोली, रहीमा काम छोड़ गई, बहुत तंग हो रही हूँ, कोई काम वाली नेक शरीफ नज़र में हो तो मेरे पास भेजना। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। तब लम्हा भर में जोजी ने फैसला कर लिया, वो बेगम साहबा मेरी घरवाली सारा काम जानती है जी, आप कहो तो उसे ले आऊँ काम पर, लगा लोगे आप उसे। जोजी निगाहें झुकाकर बोला, अरे क्यों नहीं, तुम उसे कल ही ले आओ, इससे अच्छी क्या बात है, बस सफाई कराऊंगी, इतना बड़ा घर है, बाकी कामों के लिए तो मुलाजमीन है। वो खुश होकर बोली तो जोजी सर हिलाता वापस आ गया। अंजलि ने सुना तो वो भी खुश हुई। बोरियत से जान छूटेगी, 4 पैसे भी आ जाएंगे। पुलाव जर्दा कौरमा उड़ाते हुए अंजलि खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगी। अंजलि जैसी फुर्तीली और ईमानदार काम करने वाली किस्मत वालों को मिलती है। 15 दिन बाद उसने बेगम हाशमी को किसी से फ़ोन पे कहते सुना। वो मुतमईन हो गई। ना सिर्फ बेगम हाशमी बल्कि उनके बराबर वाली मिसेस ख्वाजा ने भी उसे रोज़ाना 2 घंटे काम पे रख दिया। यूं 2 घरों का काम खत्म करके वो आ जाती। जोशी ने 2 चाबियां बनवा ली थी, एक उद रखी और एक अंजलि को दे दी कि देर सवेर का इंतज़ार किए बिना वो घर आ जाया करे। दोनों अब अपनी ज़िंदगी में खुश थे। और फिर आने वाले दिनों में बेगम हाशमी के बेटे की शादी शुरू हो गई। अंजलि का काम बढ़ गया। अंजलि को 2 रातों के लिए वहीं रुकना था। जोजी को कोई एतराज़ न था। मेहमान भी बहुत सारे आ रहे थे। पूरे घर की सफाइयाँ हो रही थी। अंजलि का दिल लगाकर काम करना सभी को भा रहा था। बार बार सफाई करती, फिर ढेर इकट्ठा हो जाता। मेहमान भी काफ़ी सारे थे। अचानक मेहमानों से भरा घर साफ करते करते वो जब कमरे के कालीन पर ब्रश लगा रही थी तो उसका दिल धक धक करने लगा। बेड के नीचे जूते, जाने मेहमानों में से किसके कोट शूज थे, वही काले सुनहरी पट्टी वाले। अगले ही पल जूते अंजलि के पैरों में थे, चम चम करते नए नकोर जूते। जरा सी आहट पाकर उसने फौरन उतार के वहीं रख दिए, मगर दिल था कि हुमक हुमक के जूतों की तरफ पलटा जाता था। अगले दिन घर पे मिलाद था। 3 बजे थे। मेहमान आ गए। हॉल कमरे में कालीन पर सफ़ेद चांदनियाँ बिछी थीं। अगरबत्ती और परफ्यूम्स की मिलीजुली खुशबू ने माहौल मुअत्तर कर रखा था। जूतों का एक ढेर था। तभी मेहमानों में से एक नफीस लड़की आई और उसने जूतों के ढेर में अपने चमकीले काले कोट शूज रख दिए और खुद जाकर सुपारा पढ़ने लगी। कुछ ख़वातीन गुठलियाँ पढ़ रही थीं कि नज़र की कमज़ोरी या किसी और वजह के बायस वो सुपारा नहीं पढ़ सकती थी। जाने किस लम्हे अंजलि के दिल में शैतान ने घर कर लिया। उसने खामोशी से, होशियारी से एक जूता उठाया, बगल में दाबा और अपनी चादर के अंदर छुपा कर वापस अपने कामों में आके लग गई। दिल धक धक कर रहा था मगर वो मुतमईन सी थी। घंटे बाद कोट शूज की ढूंढियां मची और कुछ देर बाद खामोशी। जूता ही तो था, भला ये बड़े लोग मामूली चीज़ों के खो जाने पर शोर और शोक थोड़ी मनाते हैं। अपने इस कारनामे पे अंजलि जी जान से खुश थी। बगल में जूता दाबे वो गोया खजाने समेटे थी। ताला खोलकर अंदर आ गई। अभी तक जोजी न आया था। संदूक में सबसे नीचे कपड़ों में छुपा दिया। एक जूते की ख्वाहिश पूरी होने पे वो सरशार थी। खाना गर्म कर रही थी कि जोजी आ गया। दोनों ने खाना खाया तो जोजी लंबी तान कर सो गया। अंजलि का दिल बेकरार था कि दीदार करती रहे जूते का, मगर जोजी की मौजूदगी में यह नामुमकिन था। अगला दिन बेगम हाशमी के बेटे की बारात का दिन था। खूब हल्ले गुल्ले के बाद बारात दूसरे शहर रवाना हो गई। कल उनकी वापसी होना थी। अंजलि को थकन थी, वो जल्दी काम समेट के घर आ गई। शादी के हंगामे अब कुछ थम चुके थे।
जोजी उस दिन काम पर गया हुआ था। झाड़ू देकर अब कूड़ा इकट्ठा कर रहा था। साथ गानों का शुगल भी जारी था। कूड़ा एक जगह जमा करके वो बड़े सारे डस्टबिन में डालने लगा तो हाथ रुक गए। कूड़े के अंदर आधा धंसा जूता, कोट शूज। उसने जल्दी से कूड़ा हटाया और जूता निकाल लिया। बिल्कुल वही जूता। इधर उधर कूड़ा किया कि दूसरा जूता दिखाई दे, मगर वहां तो एक ही था। बिल्कुल वैसा ही बाएं पांव का जूता। दूसरा होता तो मिलता। जोशी ने जूता झाड़ू के ऊपर रखा और तिनके फैला दिए कि कोई देख ना पाए। काम समेटकर वो जूता छुपाए घर आ गया। ये बिल्कुल वही जूता था जो उसने शोकेस में देखा था, और अंजलि की हसरत भरी निगाहें वो अब तक न भूला था। मगर ये एक जूता मेरे और अंजलि के किस काम का? क्यों उठाया? जोशी का दिल चाहे उसे वहीं कूड़े में फेंक दे। फिर हंस दिया और घर आ गया। जूता झाड़ू के नीचे छुपा दिया। वो घर आया तो अंजलि सो रही थी। उसके आने पर गनुदगी में उठ बैठी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अंजलि ने उसके चेहरे पे अजीब खुशी देखी। तब जोशी दांत निकाल के फिर मुस्कुराया। तेरी आधी ख्वाहिश पूरी कर पाया हूँ, वो होले से बोला। क्या मतलब? अंजलि ना समझी से बोली। जोशी उठा और इकलौता जूता अंजलि के सामने लहराया। अंजलि को यही उम्मीद थी। उसका प्लान कामयाब हुआ था, मगर जोशी का क्या रद्द-ए-अमल होगा दोनों जूते देखकर वो अब तक खौफजदा थी। ये एक जूता कहाँ से मिला? ये तो बिल्कुल वही है जो तुमने दिलाने का वादा किया था, मगर मैं उस एक जूते का क्या करूं? अंजलि के सांवले चेहरे पर उदासी थी, मगर अंदर ही अंदर खुशी। हाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ। या तो किसी ने गलती से कूड़े में फेंक दिया, पता नहीं। जोशी उलझ के बोला। तू इसे रख दे, क्या पता कल को दूसरा भी मिल जाए। अंजलि मुस्कुराकर बोली। तेरे तो हो गए ना मुफ्त में मजे, अब उदास क्यों है? आ इधर आ, मेरे पास बैठ। ये कह के जोशी ने अंजलि का हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया। अंजलि अपनी तरकीब पे बहुत खुश थी। आज जोशी के आने से पहले उसने दोनों जूते बराबर रख के उन पे कपड़ा डाल दिया। उस रोज जोशी को देर हो गई। अंजलि को लम्हा लम्हा सदियों बराबर लग रहा था। वो आया और खाना खा के आज मिलने वाली तनख्वाह गिन रहा था, मगर हनूज उदास था। पता नहीं कब इतनी रकम जमा कर पाएगा कि अंजलि को जूते दिला सके। इस बार भी नहीं। क्या हुआ? वो उसे खुद गुलामी करते देख के बोली। इस बार भी तुझे जूते ना दिला सकूंगा, वो ठंडी आह भर के बोला। रहने दे जूते और हिसाब किताब, हमें नहीं लेने नए जूते, वो इटला के बोली और जोशी की तरफ देख के मुस्कुराई। क्या मतलब? अब वो हैरान हुआ। ये देख, अंजलि ने कपड़ा हटाया। दोनों जूते चमक रहे थे। कहाँ से आया ये दूसरा जूता? जोशी पैसे जेब में डाल के हक्का बक्का उठकर जूते उठा कर जांचने लगा और सवालिया नजरें अंजलि पे जमाई। मैं आज सफाई करके कूड़ा डब्बे में डालने आई तो उसमें पड़ा था ये एक जूता, मैं उठा लाई, चोरी नहीं की। अंजलि मासूमियत से बोली और जूते उसके हाथ से लेकर पहनकर कमरे में टिक टिक करने लगी। उसके चेहरे पे खुशी बिखरी थी, जबकि जोशी का चेहरा फिक्रमंद था। अगली सुबह मामूल के मुताबिक थी। दोनों उठे, नाश्ता किया और काम पे चले गए। लेकिन आधे घंटे बाद ही जोशी घर आ गया। उसने खामोशी से जूते एक शॉपर में डाले और डालकर बेगम हाशमी के पास चला आया। शादी का घर था, उन्हीं में से किसी के होंगे। ये जी आपकी अमानत। जोशी ने जूते उनके कदमों में रख दिए। अरे ये तुम्हें कहाँ से मिले? वो हैरानी से बोली। मुझे ये कूड़े से मिले हैं, साफ सुथरे कर दिए हैं मैंने, वो कदरे हकला के बोला। देख लें जी, मुझे अंदाज़ा था शादी वाले घर में से किसी के होंगे। तब उन्हें एकदम याद आया कि उनकी हैदराबाद वाली भांजी रबिया के जूते गुम हुए थे। उस दिन पूरे घर में ढूंढा, तब भी नहीं मिले थे, इसलिए जूतों का खूब शोर मचा हुआ था। थोड़ी देर देखने के बाद वो बोली, हाँ मगर जिसके थे वो तो अब चली गई, मैं इनका क्या करूं? वो दिल ही दिल में एक बार फिर जोशी की ईमानदारी की काल भी हो गई थी। हाँ ऐसा करो, ये अंजलि को दे देना मेरी तरफ से, उसे पूरे आ जाएंगे। वो उसे इशारा करते हुए बोली और जोशी ने दिल ही दिल में सुख का सांस लिया। मेहरबानी आपकी जी, आप इतना ख्याल रखती हैं। वो मजीद कोई बात कहे बिना जूते लेके सीधा घर आया और वापस वहीं रख दिए जहाँ से उठाए थे। अब उसका दिल मुतमईन था, इत्मीनान सा हो रहा था कि अपनी ईमानदारी को साबित कर दिया था। अंजलि ने जो किया वो मजबूरी थी, उसे अब दिल पे कोई बोझ महसूस ना हो रहा था।
وہ ایک خاک رب تھا، خاک چھانتے چھانتے عمر گزار رہا تھا۔ اتنا تو اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا ہے، ایک منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ بعض اوقات انسان کی خواہشات اسے اندھا کر دیتی ہیں، لیکن جوزی ایسا نہیں تھا، وہ ہرگز بھی کمزور نہیں تھا، خواہشات نے کبھی بھی اسے اپنا غلام نہیں بنایا تھا، لیکن انجلی اپنی خواہش کی غلام بن گئی تھی۔ اسے سب سمجھ آ چکا تھا کہ یقیناً انجلی نے اپنی خواہش سے مجبور ہو کے یہ کیا، اور اس نے جو کیا اس کی مجبوری تھی۔ غربت غریب کے دل سے بعض اوقات صحیح اور غلط کا فرق بھی ختم کر دیتی ہے۔ وہ بھی کچھ ایسی ہی غربت میں زندہ تھے، پر اب اس کے دل پہ کوئی بوجھ نہ تھا۔ اس نے خود کلامی کی، انجلی اب تم بنا ہچکچاہٹ انہیں استعمال کرنا۔ اس کے دل میں سکون کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ تالا لگا کر دوبارہ کام دھندے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خوش تھا کہ اس کی بیوی اب ویسے ہی جوتے پہن پائے گی جس کا اس نے بہت وقت پہلے خواب دیکھا تھا۔ وہی کالے جوتے جو اس کی پہنچ سے تا حیات ہی دور رہتے۔ ہاں، وہی کالے جوتے اب اس کی بیوی کی جائز ملکیت۔